أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرح صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى عيوننا في غم العلي. الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشية العلي واللعنة على أعداء علي. أما بعد فقد قال الإله علي في شان علي. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محترم سامعین حضرات، ماتم داران مظلوم کربلا، پرساداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ امام ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان ائمہ پر فعل خیرات کی وحی کی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ازل سے ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. صلوات پڑھیں مولانا. حق یہ تھا کہ یہاں سے میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا، مگر قاریئ قرآن کی ایسی بہترین تلاوت کے دل کرتا ہے کہ قرآن پر 2-4 جملے ضرور کہوں. ایک تو نمائندگی کروں کہ ہم شیعان حیدر کرار قرآن کو کیا مانتے ہیں. میں ہر نوجوان کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی وکیل فرش ادا ہیں، آپ ہی سے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پر سوال کیے جاتے ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں، اشکال کیے جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، ہمارا اور ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ امام کی غیبت کے بعد جو پہلا عالم ہے وہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے اعتقادات شیعہ، اور آخری جو کتاب ہے وہ ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، جس نے فشردۂ عقائد لکھی ہے. ان تمام مراجع میں یہ لکھا ہے کہ جو قرآن کا انکاری ہے وہ لعنتی ہے. قرآن تو کیا، قرآن کے ایک پارے کا انکاری لعنتی ہے. پارہ کیا، قرآن کے ایک سورہ کا انکاری لعنتی ہے. سورہ کیا، قرآن کی ایک آیت کا انکاری لعنتی ہے. آیت کیا، قرآن کے ایک حرف کا انکاری لعنتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. قرآن کا حرف کیا، قرآن کے ایک زیر زبر کا انکاری لعنتی ہے. زیر زبر کیا، قرآن کے ایک نقطے کا انکاری لعنتی ہے. جو میری گفتگو اس جملے کو نہیں سمجھائے تھوڑا واضح کروں. قرآن کا نقطہ کون ہے؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ
سے, بسم اللہ شروع ہوتی ہے با سے, با شروع ہوتی ہے نقطے سے. مولا نے فرمایا وہ نقطہ کل بھی علی تھا, آج بھی علی. سلامت رہے. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, سلامت رہے. دل کرتا ہے ایک اور جملہ کہوں. بڑے کتاب 4 نازل ہوئے ہیں. قرآن کی عظمت اللہ ہے. تورات, انجیل, زبور, قرآن, ماشاءاللہ 4 کتابیں ہیں. اچھا قرآن کا ریحل یا کہ قرآن کا ممبر لے کر آئیں, اس پر آپ تورات نہیں رکھ سکتے, انجیل نہیں رکھ سکتے, زبور نہیں. کیوں؟ یہ بھی تینوں اللہ کی طرف سے ہیں. آواز اگر یہ تینوں تھے, چوتھا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ذہنوں کو بیدار کر جملہ کہوں, وہ 3 تھے, یہ ہے. اور یہ قرآن ہے صامت, علی ہے ناطق. جب اللہ کے نازل کرتا صامت کے قرآن کے ممبر پر نہیں آ سکتے تو علی ناطق کے قرآن کے. ذہنوں کو بیدار کرنے کو کہنا چاہتا ہوں. مولا کو سلامت رکھے. اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے. جملہ کو یہ اٹھتے ہاتھ ہیں, ان ہاتھوں کو امام زمانہ کی بیعت نصیب فرمائے. قرآن پر آپ بول پڑے ہیں تو قاری قرآن کے لیے بھی ایک جملہ میں کہوں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں. ہے توجہ آپ حضرات کی, بہت اچھا سن رہے ہیں. آپ کو سلامت رکھے. میں حیدرآباد میں ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پڑھ رہا ہوں اور میری زندگی 25 برس گزرے ہیں امام رضا کے دیار میں. مولا کی اور میری اور فضیلت کوئی نہ ہو, یہی کافی ہے کہ 8ویں کا پڑوسی ہوں. آپ کو سلامت رکھے. ہم اور دنیا والے جو قرآن کو مانتے ہیں, ہمارا اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہم شیعان حیدر قرار قرآن سے علی لیتے ہیں, علی سے قرآن لیتے ہیں. میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھیں علی کے بغیر قرآن فائدہ نہیں دیتا, قرآن کے بغیر علی فائدہ نہیں دیتا. دونوں ساتھ ہیں. رسول نے کہا ہے, جناب پیغمبر ہیں, صبح کا ٹائم ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک ایک آری قرآن پڑھ رہا ہے. کہا مولا کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. مولا نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. پیغمبر نے سوچا اتنی بڑی اچھی آواز, اچھا قاری, یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ بولنے والے علی ہیں. کہا کہ نماز فجر میں نے مولا کے پیچھے جا کر پڑھی. کیا وہ نماز ہوگی؟ پڑھانے والے علی اور پڑھنے والے پیغمبر. نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد جب میرے مولا ممبر پر آئے, جناب پیغمبر چھپ چھپاتے ہوئے اس قاری قرآن کے دروازے پر گئے. اب دیکھیں جو خاموش بیٹھے اس کی ضمانت نہیں لیتا, مگر جو مجلس سننا آئے ہیں ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ معراج ہو جائے گی. دیکھیں مجلس 2 سننے والے, 2 شخص آتے ہیں مجلس سننے, ایک آتے ہیں دیکھنے, ایک آتے ہیں سننے. غدیر میں بھی یہی تھا, ایک علی سننے والے تھے, ایک دیکھنے والے تھے. جنہوں نے فقط دیکھا انہیں سمجھ نہ آیا, جس نے سنا بھی دیکھا بھی. توجہ چاہتا ہوں. اور پورا عشرہ آپ نے سنا اور علی علی کیا, علی سنا. اچھا چھپ چھپاتے ہوئے دروازے پر پہنچا, تھکل بات کیا, قاری قرآن باہر آیا, کہا کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. الحمدللہ, کیا لہن ہے, سبحان اللہ. اب تیسرا سوال کیا, کہا علی کو جانتے ہو؟ ترجمانی, میں ترجمانی کروں گا آخری ازادار تک توجہ چاہوں گا. کہا کہ علی کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا. کہا تبھی تو لانتی ہو. اچھا اس نے سنا اور آیا مولا کی بارگاہ میں, سر جھکائے ہوئے ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کمبر یقین کر لیا, یقین کر لیا. مولا آپ اس کو جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس جلی کی جس نے مجھے علی بنایا. میں نے 2 مرتبہ پہلے آواز سنی تھی, تیسری مرتبہ ابھی سن رہا ہوں. 2 مرتبہ کہا جب عالم میثاق میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار دیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا, اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار دیا, اس نے محمد رسول اللہ کہا. جب میری ولایت کی بات آئی یہ خاموش ہو گیا. اسی خاموشی پر تو لعنت برس رہی ہے. اسی لیے آیت اللہ
कुरान कहते हैं रुब्बताइल कुरान वल कुरान यलानहु, काफी ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिस पर कुरान लानत करता है। रिवायत का जिम्मेदार हूँ और मैं खुद आपके इस शहर हैदराबाद का और आपका खादिम हूँ। तवज्जो है आपकी, आखिर तक आपने मेरा साथ दिया है और कुरान की रवायात मेरे सामने आ रही है। आज मैं बताऊं कि कुरान क्या है, अली क्या है। एक देखिए मैं हवाला भी दे दूं क्योंकि मदरसे के भी कुछ मुझे नजर आ रहे हैं, किताब पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं जिनको मैंने मिंबरों से देखा है, और बुजुर्ग हस्तियां मैं नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी जिंदगियां दर सहरा पर गुजरी हैं, मैं उनके नौजवानों से मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अली की विलायत और कुरान आप देखें, तफसीर अयाशी कमाल है, जिल्द पहला सफा 500 बैरून से छपी हुई है, जिसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं विलायत और कुरान को देखिएगा, अगर विलायत ना हो तो कुरान क्या है। तो जब हज़रात मौलाना फरमाई अल्लाह जअल विलायतना कुतुबुल कुरान व जमीउल कुतुब, अल्लाह ने हमारी विलायत को कुरान का कुतुब करार दिया है। मैंने कुतुब इसलिए इसका तर्जुमा भी करूंगा, कुतुब से में रख ले, काफ कलम तोए ताहिर बे बिस्मिल्लाह, कुतुब इसकी माना है। अभी बुजुर्ग बैठे उनकी तवज्जो चाहता हूँ, आटे की चक्की जो घर में रखते थे, गंदम पीसी जाती थी, उसमें तवज्जो, उसमें एक कील लगी होती है जो बिल्कुल सेंटर पे होती है, अरबी में इसे कुतुब कहते हैं। अगर ये कुतुब निकल जाए, ये दोनों पार्ट रहेंगे, गंदम रहेगी, आटा नहीं बनेगा। मौला फरमाना चाहते ये कुतुब आटे की चक्की का है, हमारी विलायत कुरान का कुतुब है। विलायत को छोड़ा तो कुरान फायदा नहीं देगा। नहीं, यहाँ पर जितने हजरात बैठे हुए हैं मैं इनकी मुकम्मल तवज्जो चाहूँगा। मुझे सिंधी में मजलिस पढ़ना नहीं आती, मगर लतीफ सरकार से मेरा इश्क है। अच्छा, ये जो कील है इसको कहते हैं कुतुब। अब यूट्यूब में जाके देखिए ना, ये जब चलती है, जो इस कुतुब में दाने आ जाते हैं वो पिसते नहीं है, क्या बात सही है, वो बन जाते हैं, वो कभी भी पिसते नहीं है, इसको कहते हैं कुतुब। लतीफ सरकार ने कहा कि जट चुड़ देई रुथोगी इस करण, क्या बात है, जट चुड़ देई रुथोगी इस करण के पीस जी बनी था के गारे मंझ करण, साबित से रणज जो कुर्बन की ईर्षा। कुरान का कुतुब है, कुरान का कुतुब है। तवज्जो चाहता हूँ, अब जो नारे में सुस्ती कर रहे हैं तो मैं उनके लिए ये नहीं कहूंगा कि यहाँ कोई हलाली नहीं, हलाली होता ही वही जो मजलिस में बैठता है, मगर इस नारे के लिए मैं 2 रवायतें जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि जब आपका सुकून मुझे बता रहा है कि रवायत से बताओ कि या अली आस्था क्यों कह रहे हो, अभी पता नहीं चलेगा कि या अली क्या है। तवज्जो है आप हज़रात की, ताकि कुरान की आयत है तो ना समझ या हमने फिर सलावत पढ़े मौला की फिर भी सलावत पढ़े मौला की जात पर लेता फिर भी सलावत पढ़े मौला की जात पर। चुके हैं, मैं ज्यादा मुजाहिर नहीं बनूंगा, बस 2-4 जुमले सुने और रब्त मसाज के लिए एक मसाज का जुमला और किबला के हवाले में मर करूंगा। मिलकर सलात पढ़े मौला के साथ। एक ही रवायत पढ़ लूँ, फिर अपने मौजू पर जो आयत पढ़ी उसके 2 जुमले पढ़ा। तवज्जो चाहता हूँ, मौला अली पर बात चल रही थी, सुने पैगाम सुने और या अली का पैगाम। 2 रवायतें, पहली फजाइल, दूसरे में हमारे लिए और आपके लिए नसीहत है। तवज्जो, कहा कि
मुल्ला समदी अमली ने कहा कुरान की आयत के ज़ेल में, कहा कि नमाजों के जोर पर जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएगा नमाजी, दरवाजा बंद होगा, अंदर से आवाज आएगी चाबी है। कहेगा कि मौलवी साहब ने दफन किया था, उस वक्त कफन में जेब नहीं थी, हाथ खाली था, चाबी कहाँ से आए? वादा कर इस पर अगर बोलेंगे तो मैं रवायत पढ़ूं, वरना मैं आ जाऊं अपने मौजू पर। कहा कि चाबी है, कहा कि चाबी तो मौलाना ने रखी नहीं थी, ये चाबी कहाँ से आए? अंदर से आवाज आएगी, ये लोहे की भीतर की चाबी नहीं, एक मर्तबा या अली का हो, एक नहीं सब खुल जाएंगे। अब चाहेगा या अली कहूं, क्योंकि जमाने में जिंदगी में या अली कहने को भीतर कहता था, जबान दांतों तले दब जाएगी, कहना चाहेगा या अली कहूं, अंदर से आवाज आएगी मलून, दुनिया में तू नहीं चाहता था अली अली कर, अब मैं नहीं चाहता अली अली कर। हवाला दे रहा हूं कि अल्लामा अमीनी ने किताब अल-गदीर के पहले जिल्द के मुकद्दमे में लिखा, ये वो किताब है कि ख्वाब में एक आलिम दीन ने देखा कि अल्लामा अमीनी महशर के मैदान में आ रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम कौसर पिला रहे थे, कौसर पिलाते हुए जाम रखा और बाएं फैला कर कहा कि अमीनी आजा सीने से लग जा, तूने गदीर लिखी थी। उन्होंने लिखा कि जब या अली कहने वाला तो या अली कहेगा दरवाजा खुल जाएगा, अब कहेगा मेरी जन्नत कहाँ तक है, मेरे बागात कहाँ तक है? अली वाले तो बागों पर कब्जा नहीं करते, मेरी कहाँ तक है? गैर से आवाज आएगी, जितना जोर से या अली कहोगे जन्नत तेरी जागीर बन जाएगी। ये रवायत आप तक पहुंची। अब चले मैसेज देता हूँ, अली का नाम कितना पाकीज़ा है, नाम लेने से कुरान का सवाब, ईमान मुकम्मल हो जाता है। रसूल खुदा मस्जिद नबवी में वुज़ू कर रहे हैं, एक ने आके सवाल किया, कहा कि या रसूलल्लाह ऐन अली अपना पिता ने, वुज़ू जारी है, पूछ रहा है अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है? रसूल ने तहारतों के काबा, रसूल ने वुज़ू मुकम्मल किया, ताकि अली फिल मस्जिद, अली मस्जिद में है, अली मस्जिद में। कहा अजब नहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ताज्जुब है, आप फरमाते कि अली मस्जिद में है। मैं समझ जाता कि अली मस्जिद में जाके जाके मिलता, आपने ये देर से क्यों बताया? जमाने को तहजीब सिखाने वाले रसूल ने कयामत तक एक फार्मूला दे दिया है, बताया कि मैं रसूल होकर अली का नाम वुज़ू के बगैर नहीं देता, वुज़ू के बगैर नहीं देता। आखिर तक तवज्जो चाहता हूँ, अली रसूल खुदा ने ये जुमला कहकर कयामत तक ये मीज़ान दिया है कि मैं तहारतों का काबा होकर अली का नाम वुज़ू के बगैर नहीं लेता। तुम भंग के नशे में न रहना, तुम चर्च पी के अली अली न करना, तुम शराब पी के अली अली न करना। शराब पी के अली अली न करना, बस एक घड़ी पहन ली, ये हो गए मोमिन, और जो मर जाए बैठे हुए वो हो गए मुकस्सिर। मर जाए कहते हैं कि अली के नाम तो बगैर वुज़ू से छू नहीं सकते, तू भांग पी कर मोमिन, और अली का नाम भी लगाया हुआ है, या इज्जत कर रहे हो या मोमिन हो, क्या मोमिन या मुकस्सिर भी नहीं हो? वुज़ू के बगैर अली का नाम नहीं ले सकते, अली के नाम को छू नहीं सकते, ऐसा इमाम मिला है हमें। इसलिए सूरह अंबिया से जो मैंने आयत पढ़ी, दो जुमले सुन ले, ऐसा अली जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि वजअलनाहुम अइम्मतन, इमाम हम बनाते हैं। अब हम को हम कैसे बयान करें? इमाम हम बनाते हैं। कल आके गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह ने क्यों कहा है। इमाम अल्लाह बनाता है, इमाम दीन का है और दीन खुदा का है, इमाम बनाना खुदा का काम है। या अल्लाह तुमने कहा हम बनाते हैं, तेरा बनाया हुआ कैसे पता चलेगा कि तूने बनाया है? कहा जो मैंने बनाया है वो मेरे घर से आएगा। इमाम की सिफत है कि अल्लाह बनाता है, वही हदून बे अमरिना, वो इमाम हमारे अमर से हिदायत करता है, जिसके पास अमर हो उसको उलुल अमर कहते हैं। बस इस लफ्ज को खोलो, रब्ते मसाइल। हिदायत के दो अक़साम हैं, उलमा ने लिखी है, बस ये आखिरी लफ्ज है, इराअतुत तरीक़ ईसाल इलल मतलूब, ये दो लफ्ज बोलते हैं। इराअतुत तरीक़ यानी क्या? यानी आप यहाँ आ रहे हैं अली महनस में, आप खड़े हुए कासिम चौक पर,
आपने एक से सवाल किया कि अली पैलेस कहाँ है, उसने रास्ता बताया, सीधा जाओगे पुल आएगा, नीचे ये कासिमाबाद का रास्ता अंदर जाता है, सीधा जाएंगे पेट्रोल पंप के साथ ही है, उसने बता दिया। मगर उसके बाद एक शख्स आ रहा है, बल्कि नाम लूं, नबीउल्लाह शाही साहब आ रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ, कहा कि ये अली पैलेस कहाँ है, गाड़ी में बैठे वहां पहुंचाता। एक ने रास्ता बतलाया, एक ने मंजिल तक पहुंचाया। कुरान रास्ता बताता है, इमाम पहुंचाता है, मगर हुसैन निराला हादी है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, चराग रास्ता दिखाता है, कश्ती मंजिल तक पहुंचाती है। हुसैन निराला हादी है, रास्ता दिखाता भी है, मंजिल तक पहुंचाता भी है। रास्ता बताता भी है हुसैन, और मंजिल तक पहुंचाता भी है। और मेरे उस्ताद ने कहा कि हुसैन मिसबाहुल हुदा है, हुसैन की मजलिस से भी मिसबाहुल हुदा है। मुहर्रम में देखें कोई कहाँ था, मुहर्रम का सफेदा बिछा, अगर थोड़ी इंसानियत थी हुसैनी बन गया, थोड़ी इंसानियत थी हुसैनी बन गया। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, बस ये मिसाल और इसी हदीस पर यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई। देखिए, मैं एक महसूस मिसाल दूँ और नौजवानों तक ये मजलिस का पैगाम पहुँच जाए। महसूस मिसाल ये है कि आप जितने हम बैठे हुए हैं, आप इत्र की खुशबू की दुकान पर जाएं, 2 घंटे बैठे, आप इत्र न लगाएं, बैठे रहें, बाहर निकलेंगे आपके वजूद से खुशबू आएगी। कहेंगे कि भाई कहाँ गए थे, भाई इत्र की दुकान कौन सा लगाया, लगाया नहीं है, 2 घंटे बैठा था, 2 घंटे बैठा था, खुशबू वजूद में आ गई। अच्छा, फिर इसके बरक्स करें, आप कसाब की दुकान पर जाएं, वहां मुर्गी ज़िबा न करें, न खून लगे, न चर्बी लगे, न गोश्त लगे, 2 घंटे बैठे, बाहर निकलेंगे, भाई ये क्या गोश्त बेचते हो, ये बदबू आ रही है। अच्छा, वहां 2 घंटे इत्र के दुकान पर या कसाब के दुकान पर कितने घंटे, 2 घंटे बैठे, वहां से खुशबू आई। मुहर्रम आता है, सफर आता है, 8 रबीउल अव्वल तक 2 महीने 8 दिन, कोई 1 घंटा मजलिस सुनता है दिन में, कोई 4 मजलिस सुनता है। मुहर्रम के बाद अगर हमारे वजूद से हुसैन की खुशबू ना आए, हुर्गी तो आनी चाहिए। खुशबू आनी चाहिए, पता चले कि फर्शी अज़ा पर फकत बैठे नहीं है, पता चले कि हुसैन देने क्या आया था, हमें लेना क्या चाहिए। उस देने वाले हुसैन को जिसने भी सवाल किया, हुसैन इतना सखी है कि इब्न कतीबा खड़ा हुआ है, बस रब्ते मसाइब के लिए करबला की रवायत सुने और आपकी सहमत तमाम। इब्न कतीबा खड़ा हुआ है, मौला अपने नाके पर खुतबा दे रहे हैं, कहता है कि जिसे खुतबा खत्म करेगा मैं हमला करूंगा, हुसैन को 2 नीम कर दूंगा। ये कह रहा था, मौला का खुतबा खत्म हुआ, इसने वार किया, मौला ने वार रोका, ये जमीन पर जाकर गिरा, मौला ने वार किया, इसकी टांग कट गई और मौला उसके सिरहाने आगे तलवार लेकर फौरन कहने लगा, ज़हरा के लाल अमान चाहता हूँ, अब मैंने अमान दे दी। मैं वार करूंगा हुसैन पर, कातिल है, और हुसैन से मांगा, हुसैन ने दिया, अमान मैंने दे दी। ऐसे हुसैन की सकीना की आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। आपके और हमारे माशरे में कोई बच्ची यतीम हो जाती है, क्या करते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं। बल्कि ये कहूँ, जब जनाब मुस्लिम की बेटियां यतीम हुई थी, जनाब सकीना देख रही थी कि दुर पहनाए जा रहे हैं, शफकत का हाथ रखा जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, यही सकीना असर आशूर के बाद इंतजार में थी, कोई तो आएगा यतीम समझकर मुझसे प्यार करेगा। अखनस बिन मुअल्ला दौड़ता हुआ आया जब ऐलान हुआ कि आले रसूल के खैमों को लूटा जाए, ये जल्दी पहुंचा। इसने कहा कि मैं अगर ये दुर उतारूंगा कोई और आ जाएगा। इसने अज़ादार आखिरी जुमला है, इसने चाहा कि मैं ये दुर उतारूं, मगर दूसरे लूटने वाले आ रहे थे, इसने उतारे नहीं, दोनों दुरों में हाथ डाले, जोर से खींचा, सकीना के कदम जमीन से उठते हुए आए। एक मरतबा कान की लबें मजबूत होती है, लबें फटी, सकीना गिरी, वो कहता बाबा यतीमों से प्यार